Today, rational number into decimal number, worksheet 2, page 58. Here, rational into decimal by long division method. कल बतलाए थे विदाउट डिवीजन, आज बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट. रिप्रेजेंट इन डेसिमल 21/16. तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड 21 डिवाइडेड बाय 16. 21 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 1 जा 16. Before subtraction, change the sign. It becomes 5. Now, no more digit to come. So we put decimal here, and instead of decimal, take 0. Now 50 divided by 16. The 16 3 ja 48. Before subtraction, change the sign. 50 minus 48, 2. Again, 0 occurs. Now 20 divided by 16. The 16 1 ja 16. Change the sign. 20 minus 16, so 4. Again 0. Now 40. 40 divided by 16. The 16 2 ja 32. Change the sign. 8. Again 0. 16 5 ja 80. Change the sign. 80 minus 80 0. We get its end, so it is a terminating decimal. 21/16 is equal to 1.3125. Similarly, we can solve other problems of question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 का और जो प्रॉब्लम है वह हम इसी तरह से डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से दिखलाएंगे. एक बात ये लेकिन ज़रूर याद रखें, जब कभी भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन ज़रूर चेंज करें. विदाउट चेंजिंग साइन सब्ट्रैक्शन कांट टेक प्लेस. इसलिए सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम साइन ज़रूर चेंज करें. ये आदत डालना बहुत अच्छी बात है. तो 21/16 it is equal to 1.3125. It is terminating decimal. Now, question number 2. Question number 2 is here. Without actual division, determine which of the following rational number have a terminating decimal representation and which have a non-terminating decimal representation. बिना डिवाइड किए हम कैसे कह सकते हैं कि यह टर्मिनेटिंग है और यह नॉन टर्मिनेटिंग है. इसका रूल क्या कहता है? 2 का रूल देखते हैं पहले. A rational number in a standard form having denominator in the form of 2 exponent n into 5 exponent m, where n and m are integers, is a terminating decimal. Otherwise, it is non-terminating. यानी रेशनल नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसका डिनोमिनेटर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम नंबर 2 एक्सपोनेंट n और 5 एक्सपोनेंट n, 2 और 5 ये प्राइम नंबर्स डिनोमिनेटर के आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में. तब तो हम उस रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग समझेंगे. यदि 2 और 5 के बाद कोई दूसरा प्राइम नंबर जैसे 2 और 5 के बाद 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, इस तरह से और कोई दूसरा प्राइम नंबर आ जाए
तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल 2 का 1, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। 11/4, here it is in standard form, so prime factorization of 4 is equal to 2 into 2 and 2 exponent 2. 2 into 2, that is 2 exponent 2, 4. तो 11/4, 11/2 exponent 2, यहाँ 5 नहीं है, केवल 2 exponent 2 है, तो हम अपनी तरफ से लिख देते हैं 5 exponent 0। 2 और 5 दोनों रखेंगे। 5 नहीं है तो 5 exponent 0, 2 नहीं रहता, केवल 5 रहता तो 2 exponent 0। 2 और 5 रेशनल नंबर्स हैं, सॉरी 2 और 5 प्राइम नंबर्स यहाँ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं, कोई दूसरा नहीं। सो इट इज टर्मिनेटिंग दिस वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, 13/80, sorry 13/80. Now prime factorization of 80, it is in a standard form. The prime factorization of 80 to 40 to 20 to 10 to 5. The prime 80, that is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 5. The 13/80 is equal to 13/2 into 2 into 2 into 2 into 5, and 4 to 2, so 2 exponent 4. 1 5, 5 exponent 1, 1 नहीं लिखा जाता है, it means 5 exponent 1. 13 is to 2 exponent 4 into 5 exponent 1. केवल यहाँ प्राइम नंबर 2 और 5 है, so 13/80 it is terminating, it occurs terminating. Next, question number 3, 15/11, it is in a standard form. Prime factorization of 11, 11 is prime number, 11 प्राइम नंबर है, तो 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं क्या, 2 और 5 तो सब में लिखेंगे। 2 नहीं है तो 2 एक्सपोनेंट 0, 5 नहीं है तो 5 एक्सपोनेंट 0, और एक 11 है तो 11, 2 एक्सपोनेंट 0, 5 एक्सपोनेंट 0 एंड 11। 2 5 के बाद एक और आ गया क्या, 11। So 15/11, it is non-terminating. It is non-terminating. For here, question number 5, 29/250. Now prime factorization of 250. 2 से 125, 5 से 25, 5 से 5. तो 250 is equal to 2 into 5 into 5 into 5. 29/250. 29/2 into 5 into 5 into 5. 250. 29/2, 1 तो 1, 2 एक्सपोनेंट 1, 1 नहीं लिखेंगे और 1। अब 5 है 3 तो 5 एक्सपोनेंट 3, 5 into 5 into 5 तो 5 एक्सपोनेंट 3, 2 एक्सपोनेंट 1, 5 एक्सपोनेंट 3। 2 और 5 है केवल, तो 2 और 5 रहेगा तो इसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। सो 29/250 इट अकर्स इन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, यानी जब इसमें 29 में 250 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। पूछेगा जो डेसिमल के कितने डिजिट के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, 3, तो डेसिमल के 3 डिजिट के बाद रिमाइंडर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 37/21। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 का ही बता रहे, 37/21। 37/21 का प्राइम फैक्टर 3 7 जा 21, 3 into 7, 3 और 7 है, 2 5 नहीं है, तो 2 एक्सपोनेंट 0, 5 एक्सपोनेंट 0, 3 into 7, 1 into 1 into 3 into 7, 21 को लिखेगा। 2 और 5 तो हमेशा रखना है, नहीं है तो 2 एक्सपोनेंट 0, 5 नहीं है तो 5 एक्सपोनेंट 0, 21 को 3 into 7। तो 2 और 5 के बाद क्या है, 3 और 7, तो 37/21
इट इज नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 126/45, 45 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 3 5 जा 3 15 जा 45, 3 5 जा 15, 45 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, 126/45, 126/3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 नहीं है तो 2 एक्सपोनेंट 0 कर दिए, 2 नहीं है तो 2 एक्सपोनेंट 0 कर दिए, 3 इंटू 3 इंटू 5 यानी 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 45। 2 और 5 के बाद 3 भी आ गया। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग यानी 126 में 45 से डिवाइड करेंगे तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं। 3 का 1, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें। -27/4, तो यहाँ हम लॉन्ग डिवीजन से, विदाउट डिवीजन तो वर्कशीट 1 में किया, लॉन्ग डिवीजन से 27 यहाँ माइनस है, छोड़ देते हैं माइनस में डिवाइड करना, क्योंकि बहुतों स्टूडेंट को माइनस में डिवाइड करने नहीं आता है। खैर अभी हम यहाँ 27 में 4 से डिवाइड करते हैं। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, सब्ट्रैक्शन से पहले साइन चेंज करेंगे 3, अब कोई डिजिट नहीं है आने के लिए तो डेसिमल दे दिए, डेसिमल के बदले में 0 दिए। 30 में 4 से, तो 4 7 जा 28, सब्ट्रैक्ट किए साइन चेंज किए 2, फिर 0 आ गया। 20 4 5 जा 20, फिर साइन चेंज किए 20 - 20 0, तो -27/4 इक्वल टू, माइनस लगा दिए 6.75 -6.75 -27/4 इक्वल टू -6.75 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये था मेरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 इस वर्कशीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहता है, इफ द नंबर 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 इज एक्सप्रेस एज ए डेसिमल विल इट बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जस्टिफाई योर आंसर। यानी इसका सम जो है वह टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, तो पहले सम निकाल लेते हैं। 2 3 4 और 5 इसका एलसीएम कितना होता है 60। 2 से डिवाइड किया 60 में तो 30, 30 इंटू 1 तो 30 प्लस तो प्लस, 3 से डिवाइड किया 60 में तो 20, 20 इंटू 2 तो 40 प्लस तो प्लस, 4 से डिवाइड किया 60 में तो 15, 15 इंटू 3 तो 45 प्लस तो प्लस, 5 से डिवाइड किया 60 में तो 12, 12 इंटू 4 तो 48, 30 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 163, 163/60। अब 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 30 जा 60, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 163/60 इज इक्वल टू 163/2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 एक्सपोनेंट 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 और 5 के बाद एक 3 भी आ गया, so it is, hence it is non-terminating, it represents non-terminating decimal। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या कि फॉल्स है, जस्टिफाई करिए। 5 का 1, 22/7 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। 22 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, तो नहीं। 22 में 7 से डिवाइड करेंगे तो इंड प्राप्त नहीं होगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। 22/7 इज नॉट टर्मिनेटिंग, फॉल्स। 22/7 का कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो नो, फॉल्स।
22/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? तो इसमें इंट प्राप्त नहीं होगा इसलिए। 2 51/512 51/512 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 51/512 यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले तो चेक करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या कि नहीं। यदि कॉमन फैक्टर होगा तो उसको डिलीट कर देंगे, तब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 occurs 9 times। 512 is equal to 2 exponent 9। 2 occurs 9 times। 2 को अगर 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 हो जाएगा। और 5 नहीं है तो 5 एक्सपोनेंट 0 कर दिए। तो 51/512 इट इज 2 exponent 9 into 5 exponent 0। Hence it is terminating। 2 और 5 है, it is terminating। That can be represented as terminating। Yes, answer is yes। इतना is terminating। इसी तरह से और भी है 6 क्वेश्चंस हैं इसमें। 5 में 2 बतलाए हैं, रिमेनिंग जो बच गया आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसको बनाइए। तो वर्कशीट 2 HW डू वर्कशीट 2 को पूरा बनाइए। फिर इसमें जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं वर्कशीट 2 में। नेक्स्ट क्लास में हम कन्वर्सन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर ये बतलाएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अब ये थोड़ा सा बतला देते समय है। तो पेज 62 में आइए। पेज 62 ये है वर्कशीट 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज रेशनल इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। डेसिमल को अब रेशनल में, जस्ट इसका उल्टा, वर्कशीट 2 का जस्ट उल्टा। डेसिमल नंबर है उसको रेशनल में, और रेशनल भी कैसा आते हैं? इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 0.25 इसको लिखेंगे 0.25। डेसिमल के बदले में 1 लिखेंगे और डेसिमल के दाहिनी ओर जितने डिजिट हैं उतना 0 बैठा देंगे, डेसिमल हटा देंगे। डेसिमल के बदले लिखे 1, डेसिमल के दाहिनी ओर 2 डिजिट है तो 2 0 बैठा दिए, डेसिमल को हटा दिए। इट बिकम्स 25/100। कॉमन फैक्टर है 25। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। इट बिकम्स 1/4। तो 0.25 इज इक्वल टू 1/4। जैसे है माइनस 0.052 माइनस 0.052 बाय डेसिमल के बदले लिखे 1। डेसिमल के दाहिनी ओर 1 2 3 डिजिट, डेसिमल के दाहिनी ओर है 1 2 3 डिजिट, तो 3 0 बैठा दिए, डेसिमल को हटा दिए। इट बिकम्स 52/1000। 4 से 4 है कॉमन फैक्टर, तो 4 13 जा 52 और 4 250 जा 1000। इट बिकम्स -13/250 -13/250। तो -0.052 इज इक्वल टू -13/250। क्वेश्चन नंबर 6 -9.6 इसको रेशनल में कन्वर्ट करना है। -9.6 डेसिमल के बदले लिखे 1, डेसिमल के दाहिने है 1 डिजिट, 1 0 बैठाए, डेसिमल को हटा दिए। ये हो गया -96/10। कॉमन फैक्टर है 2, 2 से डिवाइड कर दिए। 248 जा 96, 2 5 जा 10। इट बिकम्स -48/5 -48/5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एड द फॉलोइंग डेसिमल्स। ऐड करें 2.5 प्लस 7.51 प्लस 11.501। ऐड करने का क्या रूल है? तो डेसिमल के सामने डेसिमल रखें।
2.5। अब इस डेसिमल के सामने ही डेसिमल है, 7.51, 7.51 डेसिमल के सामने डेसिमल। 11 पॉइंट देखिए डेसिमल के सामने डेसिमल 11.501, खाली स्थान पर 0 0 0 भर दिए ताकि ऐड करने में सुविधा हो। 1 1 15 5 1 10 1 11 1 1 1 2 एंड इसका सम दैट इज इक्वल टू 21.511। ये है बेस्ट प्रोसेस। डेसिमल के सामने अगर डेसिमल रखते हैं तो ऐड करना आसान है, सब्ट्रैक्ट करना आसान है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए यह रूल लगाएंगे, डेसिमल के सामने डेसिमल रखें। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल। 2.9 इंटू 3.5 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2.9 इंटू 3.5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10, 4 14, फिर 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 2 8, इसको ऐड किए तो 5 4 + 7 11 1 1 + 8 9 + 1 10। अब मल्टीप्लाई करने के बाद यह देखते हैं डेसिमल के दाहिनी ओर कितने डिजिट हैं। तो 1 डिजिट और 1 डिजिट 2 डिजिट है डेसिमल के दाहिनी ओर। लेफ्ट क्या है वो मालूम नहीं, लेफ्ट से नहीं मतलब डेसिमल के दाहिनी ओर। तो दाहिनी ओर 1 और 1 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद दाहिनी ओर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा देते हैं। 1 2 यहाँ डेसिमल बैठा दिए, तो 2.9 इंटू 3.5 इक्वल टू 10.15। दैट इज योर आंसर। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। अब एक है क्वेश्चन नंबर 4 डिवीजन। 59.049 डिवाइडेड बाय 9। कैसे डिवाइड करेंगे? 59.049 डिवाइडेड बाय 9। 9 6 जा 54, सब्ट्रैक्ट किए, साइन चेंज किए, बच गया 5। अब यहाँ पहले डेसिमल है तो डेसिमल दे दिए, उसके बाद एक एक पहला ये 0 आ गया यहाँ पर, तो 50 में 9 से डिवाइड किए तो 9 5 जा 45, सब्ट्रैक्ट किए, साइन 50 - 45 तो 5। फिर दूसरा डिजिट ये 4 आ गया। 9 6 जा 54, सब्ट्रैक्ट किए, 54 - 54 तो 0। फिर लास्ट डिजिट 9 आ गया, 9 1 जा 9, सब्ट्रैक्ट किए 0। तो 59.049 डिवाइडेड बाय 9 इट इज इक्वल टू 6.561। ऐसे डिवाइड करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं आज की क्लास के लिए। इवैल्यूएट। यहाँ पर कुछ एडिशन है, कुछ सब्ट्रैक्शन है। कैसे इवैल्यूएट करेंगे? तो यहाँ इवैल्यूएट करने के लिए हम बडमास रूल का व्यवहार करेंगे। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। बडमास रूल का व्यवहार करेंगे। जैसे फर्स्ट 25.75 प्लस 2.09 प्लस 13.6, यहाँ 2 एडिशन है, ये 2 प्लस है। सेम साइन वाले को ऐड करेंगे, तो पहले ऐड करना है तब ये सब्ट्रैक्ट करना था। सेम साइन वाले को ऐड करेंगे, साइन वही रखेंगे। ये प्लस तो दोनों को ऐड कर दिए। 25.75 प्लस 2.09 इट बिकम्स 27.084, दोनों को ऐड कर दिए तो इतना हो गया। और माइनस 13.6। अब ये प्लस और प्लस दोनों को ऐड किए तो साइन प्लस का, और ये माइनस। एक प्लस और एक माइनस, तो बड़ा में छोटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन बड़ा का लिखेंगे। 27.84 और माइनस 13.6 सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे? तो डेसिमल के सामने में डेसिमल रखते हैं। 6 यहाँ पर एक स्पेस खाली है तो 0 बैठा दिए, सब्ट्रैक्ट किए। 4 8 - 6 तो 2 डेसिमल, 7 - 3 तो 4, 2 - 1 तो 1, दैट इज इक्वल टू 14.26। तो सेम साइन वाले को, लाइक साइन को पहले ऐड करेंगे, साइन वही रखेंगे। अब एक प्लस और एक माइनस रहेगा,
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा में छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बड़ा का लिखेंगे, छोटा का नहीं, बड़ा का लिखेंगे। इस तरह से आप वर्कशीट 3 भी प्रैक्टिस करेंगे। डू वर्कशीट 3 अप टू क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ तक बनाएंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 6 जो है और ब्रेन टीजर जो है वह कल के क्लास में बतलाएंगे। थैंक यू।